Sir, can you hear me? Yes. Can you please repeat the lords of the directions once? Yeah. Please So we note can it down. properly jot it down. Yeah. Please note it down. South is equal to Mars. Southwest is equal to Rahu. Right? Yes. South. Now we will come to southeast. Venus. Clear? Further, if we go to Which one, sir? southeast. Southeast is Venus. Venus. Clear? Yes, sir. Further, we go to east. East is basically belongs to sun. Sun. Note down. Sun. Further, we go to Northeast. नॉर्थ ईस्ट. कौन है ईशान नॉर्थ को- ईस्ट का लॉर्ड? बताइए. अभी गुरु. बताया था. Jupiter. जुपिटर. Guru, Jupiter. Yes. Further we go to northwest. ये आपने बताया था सर, मून. Moon. वायु कोण. Note it down. So Saturn. West. West Saturn. Right? Clear हो रही है सारी बातें? I hope everything is clear to all of you. अभी किसी को कोई डाउट? Saturn? आगे बढ़ूं? हाँ जी बताइए. Yes. For tell the me. west, it is Saturn, right? Yeah. And For north. southwest, कुबेर. बुध. Mercury. Southwest राहु. देखिए देर आर एलिमेंट्स ऑल्सो ना. अभी एलिमेंट्स भी समझाने जा रहा हूँ. सर अगर एंट्रेंस वेस्ट की तरफ हो तो इनऑस्पिशियस होगा ना. बिल्कुल डेफिनेटली. वेस्ट और साउथ का जो होगा एंट्रेंस वो इनऑस्पिशियस होगा. सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है. जी हेलो, बताइए. हेमंत बोल रहा हूँ सर. जी सर बताइए. एंट्रेंस मींस लाइक व्हेन वी आर एंटरिंग और द डोर एंट्रेंस. देयर आर टू थिंग्स because a lot of confusion is there because someone says ki when you are entering so your face should be towards the east or the door face is towards the east. ओके लुक यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्रेंस, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारा जो घर है बेसिकली उसका जो मेन दरवाजा है, द मेन डोर ऑफ योर हाउस इज इन विच डायरेक्शन. Maybe you are entering inside or maybe you are going outside, doesn't matter in this case. Okay. So the point is this ki what is the location of your house? That is very main entrance. That is very important here. So when we are coming out, so if we are facing east, then it is you are Is considered as auspicious. When you are going inside your house, you will be facing west. You are saying that? Okay. Yeah, right. Yeah, so that doesn't matter. Basically we are talking about, because देखिए इस समय context समझिए. context उस घर में रह रहे लोग इस समय नहीं है. At this point they are not. At this point our context is building. Okay. And in that building, where is the main entrance? It could be in south, it could be in west, it could be in east. Okay. That is the point. I hope it is clear. Yeah, right. So basically effects will come later. The first thing is what kind of just you have to understand, you have to connect with your unit. आपका जो घर है, ऑफिस है, उसको आप ऐसे कनेक्ट कीजिए कि उसका geographical circumstance कैसा है. What is the geographical situation of that particular house? Okay. Now it is clear. Sir, this particular thing, what you have said, like about house, so we have to suppose like most of the people are staying in flats. Okay, so we have to go to the center of the house and then we have to see the locations or directions. Yes. And in most of the flats what happens generally,
even sometimes north is completely missing, south is completely Yeah. missing, sometimes east is completely missing. It happens in the flats generally. So that Yeah. is Some that missing means means a complete directional set, because these flats are constructed with the commercial purpose, na? So they only manage the space. I'm not able to. They don't manage the vastu. That is the point. What happen generally? The entire direction sometimes do not have existence in your flat. Generally, when we They talk, are totally mismatched. They are not according to the Vastu. I'm telling you, I'm coming to that. Just understand more deeply. I'll explain you more deeply. For example, I initiated my talks with the shapes. When we talk about the shapes, how many shapes are there? Triangle, rectangle, square, and circle. Am I right? There are the 4-5 major shapes, you understand? Yes. Okay. But in the flats, generally what happens? You don't have a flat in the square shape. You don't have a flat in the rectangle shape. Okay. They are mostly in the odd even shape. Odd even shape means when they are not rectangle, when they are not square, then So obviously it means extended or not yes, extended from it is certain yes, parts. yes. It is in some direction it is extended. In some Extended direction, and some direction it is. yes, the part does not exist. It is not in the existence. So these are the problems, but we will resolve all these problems. Nothing to worry. Okay, Yes. guys, clear हो गई बात? सब clear है? कुछ पूछना किसी को? आगे बढ़ें? Should I go Yes. ahead Yes. with Yes. Yes, sir. सर 2 मिनट का प्लीज। break? चाहिए? क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मेरा एक सवाल है। या उदय जी? सर बेसिकली हम लोग वास्तु जो है सर डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में। सर कभी कभी ना मतलब ये होता है सर, हम लोग देखते हैं कि विंटर के समय में ईस्ट थोड़ा सा मतलब वो डायगोनल चेंज होता है, 30 डिग्रीज का कुछ थोड़ा सा मतलब इधर होता है, और समर के टाइम I'm not able to listen you, Uday ji. Am I connected? Am I audible to all of you? Just a minute. एक मेरे कहने का मतलब बेसिकली मतलब ये है। जी, स्पेशली कभी कभी क्या होता है पता है, अभी जैसे कि कोई स्ट्रीट हो गया, वो एग्जैक्टली वेस्ट फेसिंग नहीं कर रहा है, मगर वो थोड़ा सा डायगोनल में है। हम लोग को जो भी बिल्डर वगैरह बेचता है वो क्या बोलता है, ईस्ट फेसिंग है वेस्ट फेसिंग है, हम लोग वही मान के चलते हैं। एक्चुअली जी उदय जी, am I audible to all of you? Yes, sir. सर सॉरी, या वी वर डिस्कसिंग बिकॉज़ हाँ, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देने जा ही रहा था, तो बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गया। नो प्रॉब्लम सर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द एनालिसिस, आपने जो ये प्रश्न पूछा, एक ह्यूमन के तौर पे ये प्रश्न बिल्कुल जायज है। डायरेक्शंस स्किप थोड़ा सा इधर उधर होता है, मगर जब आप डायरेक्शंस को कहते हैं ना, देखते हैं, चेक करते हैं, तो आप इसीलिए हम लोग जो है कंपास को फॉलो करते हैं। ओके, ऑलवेज यूज द मैग्नेटिक फील्ड, never use the direction, never go follow the directions based on the direction of the sun. मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट वो जो सिचुएशन है, वो मंथ के अंदर या साल में जो कुछ एक स्पेसिफिक मंथ होता है, मई जून का, वहां तक तो वो सही होती है, मगर उसके बाद वो हमेशा आपको डिस्टर्ब मिलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऑलवेज फॉलो कंपास। जब भी आप किसी घर के अंदर एंटर होते हैं, तो आप एक कंपास लगा के उस घर के सेंटर पे, देन जो है, अगर आप डायरेक्शंस को एनालाइज करेंगे, तो आप जो है एक बेटर वास्तु कंसल्टेंट के तौर पे अपने क्लाइंट्स को गाइड कर पाएंगे। आई होप योर आंसर इज गिवन। करेक्ट सर। सर मैं मतलब ये थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा मेरा जवाब यहाँ पे। सर आपने जो बिल्कुल बोला 100% करेक्ट है सर। मैं ये सवाल भी इसलिए पूछ रहा हूँ सर, आपने शुरुआत में हम लोगों ने मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, आपने एक बहुत 100% वैलिड पॉइंट ये बोली कि सब कोई जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं सफर्ड है या कोई ना कोई जानना चाह रहे हैं। सर पहले मतलब जस्ट 1 साल 2 साल पहले की बात है, हमारा वेस्ट फेसिंग का घर था, तो जो है वहां पे जो है सर मैंने ना बहुत ये मुझे बोलने में शर्मिंदा नहीं होती सर, मेरी और मेरे सिस्टर के विषय में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हुए हैं।
तब जब चीजें बिगड़ जाती हैं, you get to get people and try to see whether vastu is correct or not. When we hired one of the vastu consultant, they told me that actually आपका जो entrance जो है, though it is builder might have told you it is a west facing, मगर access के हिसाब से आपने जो बात की वो साउथ वेस्ट का जो है प्रॉपर एंट्रेंस बन रहा था. So that could be one of the problem करके. I was just trying to understand it in that way, sir. साउथ वेस्ट ना ही बहन भाई बल्कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी स्पॉइल करता है. साउथ वेस्ट जो है ओवरऑल जितनी भी इक्वेशंस है रिलेशन की उनको तहस नहस कर देता है अगर अच्छे से मैनेज ना किया जाए. अपूर्वा मेरा और मेरी बहन का रिलेशन का मतलब ये नहीं है सर, मतलब मेरा और मेरी सिस्टर का मतलब उनके मैरिटल रिलेशनशिप और मेरे मैरिटल रिलेशनशिप. जी सर. आई अंडरस्टैंड. तो मैंने आपको भी वही बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स का जो जोन है ना, जो जोन है वो बेसिकली साउथ वेस्ट जोन है. इस कारण से आपको ये दिक्कत आ रही है. ओके ओके ओके, थैंक यू. साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात हो रही है, मुझे एक सवाल पूछना है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? या प्लीज. सर साउथ वेस्ट में अगर ड्राई बालकनी है और उधर वाटर का ये होता है लाइक वॉशिंग मशीन है या कुछ है, तो क्या वो रॉन्ग है? एग्जैक्टली मैं ये इस बात को नहीं अभी बताना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा. ये कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा. आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ ये चीज. ठीक है? क्योंकि मैं अभी आने वाला हूँ एलिमेंट्स के साथ साथ मैं ऑब्जेक्ट्स पे आऊंगा, तब आपको मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा. ओके, डोंट वरी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन बट डेफिनेटली. थैंक यू. क्या सर तो मेरी एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और भी रहेगी. जो एक लास्ट का मैं एक छोटा सा FAQ राउंड रखूंगा, उसमें मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत एड्रेस कर दूंगा. थोड़ा बहुत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि समय की तो कमी है ही है और समय के अभाव के कारण बोल रहा हूँ. परंतु डेफिनेटली मैं आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है उनको हैंडल करूंगा अभी. बट अभी मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पहले जो मेन चीज जो जिसके लिए और लोग सब यहाँ पर बैठे हैं मैं वो डिलीवर कर दूं तो आई विल बी रियली ऑब्लाइज्ड. आप इस बात को आई होप बुरा नहीं मानेंगे. बट डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस का भी रिप्लाई करूंगा बिकॉज मैं ये मेरे को पता है कि जब मैं आपको तो आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे. मेरे बताने में ही यू विल गेट द आंसर्स ऑफ योर ऑल प्रॉब्लम्स. अभी रिजॉल्व होती जाएंगी, एक एक करके आगे बढ़ते हैं पहले. Am I right? Absolutely sir. Yes sir, please continue. Yes sir. ठीक है. तो मैं आपको बताना जा रहा था, नॉर्थ वेस्ट की बात चल रही थी. नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया था मून है. ठीक है ना? अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक बात चली, मैं बात कर रहा था जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर होते हैं तो कहाँ बैठे हैं. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो तो आप ऑलवेज नॉर्थ वेस्ट को जो है की बात कर रहे थे सर. कहाँ की? हम लोग सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन की ही अभी कंप्लीट हुआ नहीं था सर. आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ. नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ की बात कर रहे थे ना, यही कह रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, ओके सर. हाँ तो अब मैं अभी आपको सारी चीजें रिजॉल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे होगा. देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको चार्ट दिखाता हूँ, पहले आपको उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. विजुअलाइज करना चीजों को अच्छा रहता है. एंड एज अ वास्तु कंसल्टेंट भी अगर आप लोग मतलब आप अगर वास्तु कंसल्टेंट अगर अपने आप को बोलते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप एक बिल्डिंग को देखेंगे तो आपको एक बिल्डिंग को कैसे देखना है, विद द होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच का भी मैं यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल दूंगा. ऐसा हुआ था एक बार, देयर वाज अ विजिट ऑफ माइन. मैं एक विजिट कर रहा था, मध्य प्रदेश की बात है. तो मध्य प्रदेश के अंदर मैं विजिट कर रहा था, तो वहां पर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने 4 वास्तु कंसल्टेंट्स को और बताया था, बुलाया हुआ था. 5वें नंबर पे मेरा नंबर था. तो मैं दूर से ट्रेवल कर रहा था, राजस्थान से थोड़ा लेट पहुंचा. तो जब तक डिसीजन हो चुका था ऑलमोस्ट कि भाई साउथ फेसिंग प्लॉट है, और ये किसी का फोन बज रहा है. ऑफ योर माइक प्लीज. हाँ तो मैं आपको बताया था साउथ फेसिंग कंटेक्स्ट समझा रहा था. तो सबने बोल दिया कि जी साउथ फेसिंग घर है, इसको अब फाइनल डिसीजन हो गया. वो एक बहुत अच्छी मतलब कह लीजिए कि रिच, दे वर वेरी रिच पीपल. तो उनका एक पेट्रोल पंप था और तो उन्होंने बोला कि जी साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग वाला प्लॉट भी है. तो सबने बोला कि नॉर्थ फेसिंग करना है, ये करना है. और मगर उन्होंने मेरे को फिर ये बोला कि भाटिया साहब अब प्रॉब्लम ये आ गई है, हम तो ये चाहते हैं कि हम तो साउथ वाले पे ही कंस्ट्रक्ट करें, तो आप ये बताओ कि क्या ये चीज पॉसिबल है. बट अगर मैं मतलब मैंने उनको फिर एक बात बोली कि ठीक है आप एक काम कीजिए,
मेरे को इस प्लॉट के आसपास का थोड़ा सा एरिया और दिखाइए। तो फिर हम लोग घूमते घूमते उनके ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि प्लॉट की बैक साइड पे जब पहुंचे घूमते हुए, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि वहां पर एक वो था जिसे कहते हैं ना, पानी का एक पॉन्ड सा बना हुआ था, बहुत बड़ा पॉन्ड, ठीक है ना। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक ऐसा पॉइंट था कि जो वाटर एलिमेंट जब नॉर्थ के अंदर आया और इतने बड़े लेवल पे आया, तो जैसे ही मैंने नॉर्थ देखा, तो नॉर्थ यानी उसका, अब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की सारी सोच पैसे में होती है, फाइनेंस में। तो मैंने उनको बोला कि आप इस प्लॉट को गो अहेड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है कि प्लॉट भले ही आपका साउथ फेसिंग है मगर नॉर्थ के सामने जो है एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, तो आपको फाइनेंशियल एबंडेंस बहुत रहेगा। मगर उन्होंने कहा कि सर सारे वास्तु कंसल्टेंट ने मना कर दिया। मैं क्या, आप बना के देखिए और मैं आपका जो एक प्लान जो है आपको ऐसे करके देता हूँ कि आपको जो है वास्तु जो है टच भी नहीं कर पाएगा। देन वी मेड अ प्लान। उस प्लान को हमने डिस्कस करके, हालांकि मैंने जब प्लान उनको बना के दिया था तो उस समय मेरे ऊपर भी उनको इतना यकीन नहीं था। तो उसके 4 या 6 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि भाटिया साहब लास्ट मंथ हमारे बिल्डिंग जो है, जो आपने बताई थी, हमने 3-4 जगह और भी पूछा, हमने कंसल्ट करके वो बिल्डिंग बना दिया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस बिल्डिंग को बनाने के बाद एक बहुत अच्छी चीज हुई कि मेरे 4 अप्रूवल्स अटके हुए थे पिछले 3 साल से। मैं कोशिश कर रहा था कि आई वांट टू ब्रिंग द चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स, मुझे उसका अप्रूवल मिल गया है। सर ये चमत्कार कैसे हुआ? तो मैंने उनको एक बात उस समय बोली थी कि मैं कि जी फाइनेंशियल एबंडेंस बहुत है, भले ये फेस आपका साउथ फेसिंग जरूर है, मगर आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर आइडियल वे में कर देंगे, मतलब साउथ की चीजें साउथ में डाल दोगे, साउथ वेस्ट की चीजें साउथ वेस्ट में डाल दोगे, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर हम कौन सी डायरेक्शन में कितना वजन डालेंगे, यानी कि हैवीनेस या फिर एम्प्टीनेस, दो एलिमेंट होते हैं, हैवीनेस, एम्प्टीनेस। इसको बैलेंस कर देंगे तो आपको साउथ फेसिंग में भी दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपको साउथ फेसिंग प्लॉट सिर्फ इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल है और मेरे को ज्यादा मतलब तो भैया अपने फाइनेंशियल ग्रोथ से ही है। उसके बाद उन्होंने 4 पेट्रोल पंप और खोले, देवर हैप्पीली उसके बाद उन्होंने मेरे को थैंक्स भी बोला, और भी कई जगहों पे बातचीत हमारी अब होती रहती है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्शन बेकार है, कोई डायरेक्शन गलत है। आप साउथ को गलत मत बोलिए, आप वेस्ट को भी गलत मत बोलिए, मगर पॉइंट ये है कि एज अ कंसल्टेंट। नॉर्थ इज फॉर लक्ष्मी, पता है? लक्ष्मी आती है नॉर्थ। हाँ जी मुझे पता है। कौन बोल सर रहे हैं? एक चीज, प्लीज अपना माइक आप ऑफ कीजिए जो भी हैं। सारे चली गई। Sir, you can also put everyone's mute because you are the host ना, मेरी so लिस्ट आप बहुत कर सकते हैं। बहुत लंबी है, मैं उसमें जाता हूँ। नहीं, आप अपने उस पे जाके I'm going on. करना पड़ेगा, आपको सब पे नहीं जाना है। Yes. You can put it. सर एक क्वेश्चन था। टॉयलेट वेस्ट में। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, आप लोग जो हैं अपना प्लीज जो है माइक उस हिसाब से कीजिए। मेरे को ये नहीं पता लग रहा है ये बोल कौन रहा है बीच में। एनीवेज आप लोग माइक जो है थोड़ा सा ऑफ रख के फिर क्वेश्चन रेज कीजिए प्लीज। हाँ बताइए क्या पूछना चाहते हैं, और पर्सनल क्वेश्चंस मैं अभी हैंडल कर दूंगा, मगर आप अभी जो मैं जिस फ्लो में जा रहा हूँ आप सुनिए पहले मेरी बात को, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ अभी मैं आगे बढ़ूँ, शुड आई गो सर अहेड? ये जो आपने बताया, मेरे को उसी में एक क्वेश्चन पूछना था। जी बोलिए। ये जो नॉर्थ में आपने बोला कि उनका वाटर का जो था, उससे मतलब वो रनिंग वाटर था या स्टेगनेंट था, जिसकी वजह से उनको ये इतना ज्यादा फ्रूटफुल था, ये चीज बेनिफिट कर रही थी वो ये चीज? रनिंग वाटर नहीं था, ये रनिंग वाटर नहीं था। इसमें ये सारा वो जो बेल्ट है ना बेसिकली, वहां पर बरसात बहुत होती है, तो ये एक तरह का आप कह लीजिए कि स्टेगनेंट वाटर रुका था। हुआ पानी, स्टेगनेंट मगर ये वाटर। ऐसा नहीं था, ये पानी जो था बहुत बड़ा पॉन्ड था, एबंडेंस, मतलब साइज आप कह लीजिए कम से कम इस प्लॉट के कंपैरेटिवली ये जो साइज था कम से कम 50 गुना बड़ा पॉन्ड था ये, यू कैन से दैट। तो इसलिए वेल्थ एबंडेंस का उनको बेनिफिट उस प्लॉट से मिल गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी आप चेक करने जाते हैं किसी के घर का वास्तु, तो सबसे पहले आप उसको हॉलिस्टिकली देखिए। हॉलिस्टिक से मेरा मतलब ये है कि आपको उसको उसके आसपास की चीजें जरूर चेक करनी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मेरे ही कोई रिलेटिव है उनका देता हूँ। हुआ क्या कि मेरे एक रिलेटिव ने बड़ी मुश्किल से दिल्ली के अंदर घर लिया, बड़ी मुश्किल से, बड़ा सारी जिंदगी का पैसा लग गया।
मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब हुआ क्या कि हॉलिस्टिकली बहुत खुश थे वो लोग, मतलब इन द सेंस, मगर उन्होंने एक चीज गलती कर दी। उनके घर के बिल्कुल पड़ोस में एक गुरुद्वारा था। अब जब भी बात करते हैं हम रिलीजियस प्लेस की, मंदिर की, गुरुद्वारे की या चर्च की, तो जब किसी रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर किसी भी इस तरह के प्लेस की, जहाँ पर जो कि धार्मिक प्लेस है, कहने को तो वो धार्मिक है, मैं भी मानता हूँ वो धार्मिक है, मगर वहां पर होता क्या है, जनरली पीपल कम देयर एंड दे श्रेड, drop their दे ड्रॉप negative देयर energy. नेगेटिव एनर्जीज ओवर देयर। तो उस घर में एंटर होने के बाद ही, जिस जिस एंटर हुए हैं उसके एग्जैक्टली 3 महीने बाद, जो था उस वो जो फैमिली थी, मैं अभी यहाँ पर नाम नहीं कोट कर रहा हूँ, बट मेरे खुद के रिलेटिव थे, बड़ा क्लोज एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब एंटर होती पहले उसके, उनके जो हेड ऑफ द फैमिली थे पहले वो एक्सपायर हुए। डाउन द लाइन 8 महीने और बीते, जो उस घर की लेडी थी उनको हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद उस लेडी का फाइनली 1.5 साल बाद निधन ही हो गया। और अभी जो दोनों बच्चे हैं उस घर में जो रहते हैं, उनके जो 2 बेटे हैं वो रहते हैं, उनमें से एक बेटा जो है वो उसी घर में रहता है, और दूसरा बेटा मतलब जाना नहीं चाहता था अब्रॉड, मगर उसका मन नहीं था अब्रॉड जाने का, मगर उसको अब्रॉड जाना पड़ा जॉब के चक्कर में, उसका अपना घर ही छूट गया। तो आई जस्ट मीन टू से कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है। वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि जो इस मतलब वास्तु को अगर आप जब हैंडल करते हैं तो आपको मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करना है, ठीक है ना। आप अ, अगर तुक्के मारेंगे, और अगर आप किसी भी तरह से बिना अवेयर हुए, ठीक है ना, अगर आप किसी अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर लिटिल नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप उनका बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस बात को हमेशा समझिए। मगर एज अ लेमैन अगर देखें, अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है, पास बगल बगल में गुरुद्वारा है जी, बगल में मंदिर है, यहाँ से निकले, मंदिर में जाके आपने दर्शन कर लिया, आगे जी अपना हाथ जोड़ के निकल गए काम पे, कहने को तो बड़ी अच्छी बात है जी, बगल में मंदिर है, मगर नहीं, हर चीज का इम्पैक्ट है। इसी तरह से जब आपका मेन गेट होता है, अब मेन गेट के सामने मान लीजिए किसी तरह का ऑब्स्टेकल आ गया, तो आपके घर के अंदर फाइनेंशियल जो है मतलब फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कभी रह ही नहीं पाएगी। मान लीजिए कोई बड़ी दीवार आ गई, कोई अचानक से कोई पेड़ आ गया आपकी मेन एंट्रेंस के सामने, इसको बोलते हैं द्वार वेद, इस तरह की कोई चीज आ गई, तो आप एग्जैक्टली स्टक ऑफ हो जाओगे कि आपके घर के अंदर जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है वो एंटर होना बंद हो जाएंगी। मगर अब एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए क्या क्या करना है, कौन से डायरेक्शन में, आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट्स बताऊंगा कि मान लीजिए XYZ को कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं किसी की यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं उनके घर में आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, तो अब आपको क्या करें। तो मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने जा रहा हूँ कि आप उस घर में उस ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हो। अब कुछ लोग हैं जिनको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, हाँ अभी करता हूँ, फिर टीवी का रिमोट लेके फिर बैठ गए, हाँ इस काम को मम्मी आपको आपकी मदर ने बोला जाओ जाके चावल ले आ जाके फटाफट से, हाँ मम्मी अभी जा रहा हूँ, फिर सर पाँच जिसको दस हम ढिल्लू राम बोलते हैं। हाँ ढिल्लो राम आप बोलते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपना लाइफ में सक्सेस को अचीव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को टाइम पर नहीं कर पाते। और चाणक्य नीति जो है वो ये बोलती है बेसिकली, चाणक्य देखिए एक ऋषि थे, ठीक है, इसी तरह से बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, कपिल मुनि हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये जो जितना भी ये जो सारा आप देख रहे हो वास्तु एस्ट्रोलॉजी, ये सारे जो हैं मेडिटेशन के फॉर्मेट में, जब हमारे ऋषियों ने इनको विजुअलाइज किया इन दोहों को, तो उसके बाद इन इन साइंस, ये जो साइंस थी एग्जिस्टेंस में आई। और उसके बाद से अगर आप मुझसे पूछोगे सर वास्तु, तो सबसे पहले वास्तु को जो मेडिटेशन के अंदर सबसे पहले मतलब कह लीजिए कि सोचा था, वो शिव ने सोचा था, शिव भगवान ने। तो शिव जी से आगे ये ट्रैवल हुआ पराशर जी के पास, फिर पराशर जी ने फर्दर जो है इसको जो ट्रैवल करवाया, और ट्रैवल करवा के पराशर जी ने ये जो ज्ञान था ये दे दिया विदार्थ को, ठीक है ना। विद्रार्थ भी एक ऋषि रहे हैं। फिर विद्रार्थ से ये जो ये वास्तु का ज्ञान था, ठीक है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बार बार समझो। मेडिटेशन में जब कोई आदमी बैठा है तो उसके दिमाग में जो जो दोहे आए, उन दोहों को उसने विजुअलाइज किया, और फिर उन दोहों को जब नोट करके उनका मतलब निकाला गया, तो इस तरह से कर्मा प्रकाश के अंदर 1374 दोहे हैं।
ठीक है, 1374 संस्कृत के दोहे हैं, जो एक एक दोहा जो है वास्तु को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये सारे हमारे ग्रंथ हैं। हमारा जो हेरिटेज है, कल्चर है, इट वाज वेरी रिच, बट दीज ब्रिटिशर्स हैव ऑलमोस्ट हमारे कल्चर को इन्होंने खत्म कर दिया, जला दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने खत्म कर दी, हमारे सारे ग्रंथ खत्म कर दिए। दे ट्राई टू हमारे कल्चर को उन्होंने बुरी तरह से मतलब कहते हैं ना Destroy कर हार्ट, दिया। हाँ, खत्म कर दिया। तो मैं आपको बताया था वृत्रार्थ ऋषि से ये आया विश्वकर्मा के पास, ठीक है। और विश्वकर्मा जी ने फर्स्ट टाइम जो है इस साइंस को, वास्तु की साइंस को जो है पब्लिक के लिए, यानी कि इम्प्लीमेंट जनहित के लिए इन्होंने दे दिया। अब बात यह है कि अब आप सबके जो जब पब्लिक की बात करते हैं, जब ये साइंस पब्लिक में आई तो खूब सारे वास्तु कंसल्टेंट आ गए, मगर जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस साइंस को देने का, जो पूरी चेन थी, कैसे थी? शिव से पराशर, पराशर से वृत्रार्थ, वृत्रार्थ से विश्वकर्मा जी से टू द पब्लिक, एंड पब्लिक के अंदर बात करते हैं तो अब आप लोग कैरियर होंगे इसके, यू पीपल आर द कैरियर। अब आप में से बुरा मत मानिएगा, अब आप कहोगे सर आपने भी तो फीस ली, आज हमारे को वर्कशॉप दे रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले उदय जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको बताई थी इंटेंसिटी। हर चीज की इंटेंसिटी होती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही मायने में ये है कि आपको वास्तुशास्त्र इसलिए सीखना है कि आपको केवल पैसा बनाना है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो डेवलप नहीं होंगी। आपके गुरु का आपको ब्लेसिंग जब तक, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कई बार मैं भी फंस जाता हूँ ऐसी जगहों पे, चैलेंज होता है कई बार आज मेरा 20 साल का करियर हो गया है, कम से कम ज्यादा नहीं तो 10-12 हजार तो यूनिट्स में देख चुका हूँ ऑलमोस्ट। मतलब इतना काम हम लोग करते हैं पूरे साल के अंदर। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इन टर्म्स ऑफ केस स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो आप जो है इस साइंस को पब्लिक को मतलब हेल्प करने के लिए भी यूज कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि केवल मनी माइंडेड मत बनिए। अगर आप सही मायने में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो आपकी इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करने के लिए जो जनहित नाम का शब्द है वो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इफ यू रियली वांट टू बिकम माय स्टूडेंट, इफ यू रियली वांट टू इमर्ज एज अ आई वुड से ऑनेस्ट वास्तु कंसल्टेंट, तो आपको इन बातों का खासकर जो है ध्यान रखना चाहिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं सारे के सारे? मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। मगर आपको इस साइंस को अप्लाई करने का मजा तब आएगा जब आप यहाँ पर बैठे बैठे 2000 किलोमीटर के ऊपर आप कोई प्रॉब्लम बोलेंगे, आपको कोई, मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा जी मोनिका जी मेरी वाइफ से नहीं बनती है, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि इस घर के अंदर इस आदमी ने क्या गलती कर रखी है, दिमाग में ही आना चाहिए इस आदमी ने क्या गलती कर रखी है, इस आदमी के घर पे वहां पर क्या ऑब्जेक्ट गलत पड़ा हुआ है। मान लो किसी घर में आपको बोलते हैं, आपको किसी ने बोला कि जी हमारे घर में डेथ बहुत ज्यादा होती है। अब मान लो कुछ ऐसे घर भी होते हैं कि जी अभी अभी मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट जो थे उन्हीं से मिला, तो उन्होंने मेरे को एग्जांपल भी बताया कि भाटी ऐसा पड़ा, कोई है हमारे मित्र, उनको आप बताओ, बिकॉज मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने फिर उसका सोल्यूशन किया था। मगर कारण क्या है? कारण वी हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। और अगर मान लो आइडेंटिफाई आपने कर लिया तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्ट बताऊंगा, ठीक है ना? तो मैं आपको अब ऑब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ कि मान लो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको वो सारी चीजें अब बताने जा रहा हूँ। तो जो मंथन हुआ था ना, जिसे बोलते हैं ये अमृत मंथन हुआ था, आपको पता ही होगा, ये स्टोरी भी पता होगी आप लोगों को। यस सर, समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत निकला था, ठीक है ना? तो उसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट निकले थे। तो उनमें उनमें जो मेजर मेजर ऑब्जेक्ट निकले थे, उनमें क्या निकले थे, नोट करो, अब जरा नोट करना जरा ध्यान से। व्हाइट हाउसेस और व्हाइट हॉर्सेस, सफेद घोड़े निकले, नोट डाउन। क्योंकि मैं आपको बोलूंगा ये सिंबल्स आप यूज करके लोगों की प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे, ठीक है ना? मैं आपको बोलूंगा, तभी कह रहा हूँ, ठीक है? नोट करो जरा। सफेद हॉर्सेस निकले, व्हाइट हॉर्सेस निकले,
उसके बाद ईगल निकला, ईगल, ठीक है। उसके बाद लॉयन निकला। ये सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो निकल के आए थे उस समय। कामधेनु गाय निकली, ठीक है। एक चेस बोर्ड निकला, ठीक है। एक हिरन निकला, नोट कर पा रहे हैं आप मेरी बात को। उसके बाद एक खरगोश निकला। कामधेनु गाय, उसके हाँ, बाद कामधेनु गाय, ठीक है। चेस 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 बोर्ड, चेस बोर्ड। ठीक है ना। इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक पीले कलर का श्वास यानी कि येलो कलर का गमला निकला, बहुत मेजर गमला। एक्चुअली ये वो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो बाद में यूज करी जाने लगी वास्तु के अंदर। तो ये सारी चीजें आपके वास्तु को हार्मोनी यानी कि सुख सुविधा अनुसार एक कैसे कहते हैं ना, सुवास्तु बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए। मगर मैंने अभी आपको जैसे छोटा सा एग्जांपल दिया था। अब मान लीजिए आपके साउथ वेस्ट के अंदर कैक्टस पड़े हैं, यानी कि कैक्टस का पेड़ लगा पड़ा है, ठीक है। तो समझ लो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप गया, ठीक है। कांटे से जुड़ी हुई तीखी चीज पड़ी है, ठीक है ना। या फिर आप ये कह लो कि वहां पर जो है आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है जो कि वहां की हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उन ऑब्जेक्ट को हटाएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे। अब मान लीजिए किसी का घर है, मान लो कोई बंदा है, वो कहता है जी मेरे को पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मेरे को पैसा बहुत कमाना है और मेरे को वो पैसा पॉलिटिक्स से भी कमाना है। तो ऐसे आदमी को आप क्या रिकमेंड कर सकते हो कि आप एक चेस बोर्ड ले लो। चेस का जो बोर्ड होता है, जैसे चेस खेलते हैं, पूरी चेस जैसे लगी होती है, दोनों तरफ के प्लेयर्स लगे होते हैं, सब कुछ लगा होता है, वो लगा के आप जो है उसको नॉर्थ में रख दो। ये तो आप जो है पैसा कमाने की जो जितनी भी आप कह लो कि पैसा कमाने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, वो आपके वो एनर्जीज जो है पैसा से रिलेटेड, वो आपके दिमाग के आसपास घूमने लगेंगी एंड यू विल बी एबल टू रिजॉल्व योर फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल कंडीशन के जो इश्यूज है आप उनको रिजॉल्व कर पाओ। इसी तरह से अगर आप इसी चेस बोर्ड को पश्चिम दिशा में लगा दो, ठीक है ना, वेस्ट में लगा दोगे, रख दोगे, तो ऐसा आदमी, मान लो अब आपके घर में कोई पॉलिटिशियन है या आप खुद पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले काम यही करो कि पश्चिम दिशा में चेस बोर्ड रख दो, आपका पॉलिटिकल करियर बूम पे पहुंच जाए, ठीक है ना। मगर ये तो बात हो रही है कौन सी एरिया में सर? कैन यू प्लीज रिपीट? पश्चिम में, पश्चिम दिशा में चेस बोर्ड रख दो, पॉलिटिकल करियर बूम बूम करेगा फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। इसी तरह से अब जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है ना, कामों को, उन लोगों के लिए आप रेड हॉर्सेस जो है वो लगा दो साउथ वेस्ट के अंदर, वो साउथ के अंदर। जिन घरों में घर का जो, यहाँ पर मैं अच्छा एक बात और समझो आप ध्यान से, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात किसके कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि जिस आदमी के नाम पर ये घर है या ये प्रॉपर्टी है या ये ऑफिस है या ये फैक्ट्री है, मैं यहाँ पर उसकी बात कर रहा हूँ भैया। ये बात ध्यान से समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी यू, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि आप मेंबर्स तो बाद में इफेक्ट होंगे, सबसे पहले उस घर का जो मेन मुखिया है वो इफेक्ट होएगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पे? सर बिल्कुल सर। कहीं कहीं सर मेरा एक सवाल है सर, कहीं कहीं हम लोग जब घर खरीदते हैं सर, आजकल होता है बेसिकली लोन ज्यादा लेने के लिए हम लोग को एप्लीकेंट बना लेते हैं, तो इस विषय में वो दोनों के ऊपर लागू होता है ना, जैसे कि बाप बेटे हो गए? बिल्कुल जी, ओके, थैंक यू। दोनों पे लागू हो। सर यहाँ पे अगर एक मेरा क्वेश्चन है, मे बी इट साउंड्स लिटिल, अगर रेंटेड घर है देन कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, रेंट एग्रीमेंट तो अब जिसके नाम पे हुआ है हाँ, वास्तु ओके ओके ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हेलो, बोलिए बोलिए। सर मैं अभी एक अपना इंस्टीट्यूट है मेरा फैशन डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन का नागपुर में जी, तो मैं अभी उसको शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला था कि घर के आसपास मैं उसको एक प्राइवेट घर में शिफ्ट कर रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट को, मतलब वो विला लिया है मैंने रेंट पे जी, और उसके पीछे सर शिव जी का मंदिर है
उसकी छाया पड़ती है, कितना दूर है? सर कम बहुत से दूर है, करीब कम से कम 50 मीटर से भी ज्यादा दूर है। हाँ 50 मीटर का गैप है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उनका सर किचन जैसे ही खुलता है तो शिव जी का मंदिर दिखता है। प्रॉब्लम नहीं है, मेन बात ये होती है कि 50 मीटर के ऊपर उस आपका जो प्लॉट है, आपका जो घर है, पूरे दिन में उसके ऊपर जो है उस मंदिर की छाया पड़ रही है, वो बस देख लो, वो चीज आइडेंटिफाई अच्छा, की छाया अगर सर पड़ रही एक है, क्वेश्चन है मेरा। इट इज अ रिस्क। ओके सर। अगर छाया नहीं पड़ रही, मुझे मेरा जहाँ तक मेरा मानना है 50 मीटर से इतना गैप हो जाता है कि छाया नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी अगर पड़ रही है क्रॉस चेक करो, ठीक है। ओके ओके, सर एक ठीक है सर। आई एम सॉरी, एक हाँ क्वेश्चन मेरा भी है। बोलिए एक्चुअली बोलिए। मेरा ऑफिस है, उसकी दीवार जो है ना वो मस्जिद की दीवार के साथ सटी हुई है, आप मतलब वी शेयर द कॉमन दीवार। बहुत दिक्कत है ये, दिक्कत की बात है। प्रॉब्लमेटिक है, तभी आप यहाँ पे बैठी हो।